Hello everyone, a very good evening to you all. As you know that we all are running with the MCQ series, every day we come up with certain questions relating to various subjects, and we take up only those questions which have frequently been asked, which have often been asked, and there is a very great probability that why it won't be asked yet again, right? Keeping that thing in our head, let us today start with certain questions from Muslim law and certain questions from Transfer of Property Act 1882, right? Muslim law, you all know that ki Muslim law is a personal law, and in India, say even in law colleges, you have to go through the family law, that is Hindu law and Muslim law. These two personal laws have to be studied in a much greater detail, right? And Muslim law written by Akil Ahmad, if you want to go for books, then written by Akil Ahmad, Muhammadan law is the best book that you can prefer. So guys, let us start with the first question for today with regard to the Muslim law, right? That marriage in Muslim law is, मुस्लिम लॉ में मैरिज का स्टेटस क्या है, सवाल ये है. एंड द ऑप्शंस आर बिफोर यू, दैट अ सैक्रामेंट, सेकंड वन इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, third one is a sacrament and civil contract both, and D is a social status. A person having any idea of Muslim law would be very much aware that Muslim law and under say Muslim law, Muslim marriage is a civil contract. In Hindu law, it's a sacrament. We all know that it's a sanskar. But in Muslim law, it's a civil contract. Why it is a civil contract? Because there is offer from the one party and the acceptance from the another party. And in lieu of that, there is a consideration also being paid. Like in the case of Shoaib Malik and Sania Mirza, I am giving you this example because they have been celebrities and you say you know a bit about them. So in that case, what had happened that Shoaib Malik had given a meher of 65 lakhs rupees. Shoaib Malik ने 65 लाख रुपए का मेहर दिया था. मेहर इज अ उर्दू वर्ड. द इंग्लिश मीनिंग ऑफ मेहर इज डावर. डावर डावर बहुत तरह के, प्रॉम्प्ट डावर है, डेफर डावर है, लेकिन शोएब मलिक ने जो दिया था वो 65 लैक्स का था कि जब सानिया मिर्जा के साथ उनका तलाक होगा तो 65 लैक्स शैल बी पेएबल टू सानिया मिर्जा. तो कंसिडरेशन भी है. आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 का जो है उसमें बहुत सारे एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के. तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन मतलब पैसा, कंसिडरेशन होना चाहिए. तो मुस्लिम मैरिज में ऑफर है, एक्सेप्टेंस है. आप देखिए जब भी शादी होती है, निकाह होता है मुस्लिम लोगों का, तो उसमें क्या मौलवी साहब क्या बोलते हैं, कबूल है, कबूल है. तो सामने वाले से उधर से आवाज आती है हाँ कबूल है, कबूल है. तो ये क्या है, कबूल है, ऑफर है. क्या तुम्हें कबूल है, ऑफर है. सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, हाँ कबूल है. इतने लाख इतने के इस पे निकाह तक ये फाइनल किया जाता है, उर्दू शब्द मुझे नहीं पता है, ये फाइनलाइज किया जाता है और सब लोग नाचने गाने लगते हैं. सब लोग नाचने गाने लगते हैं, कबूल है, कबूल है. तो ये क्या हुआ, एक तरफ से ऑफर गया, एक तरफ से एक्सेप्टेंस आया और बीच में कंसिडरेशन आया उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. Consideration is very important. Without consideration, there can be no contract. There is no existence of contract. There is no any say legal sanctity of contract if there is absence of consideration. So consideration is very important. And here we have the offer, acceptance and consideration, and that's why it gives rise to the formation of civil contract under Muslim law. And that's why we say that Muslim marriage under Muslim law is a civil contract, as we have the essentials of a valid contract under Indian Contract Act 1872, right? आई थिंक कि मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया है. अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज हमें कमेंट में टेक्स्ट करिएगा, सो दैट वी कैन टेक अप योर काउज एंड वी कैन आंसर, वी कैन गिव इट बैक टू यू इन द नेक्स्ट सेशन, राइट? Guys, coming to the second question, right? That is relating to Indian Transfer of Property Act 1882 TPA.
The question is that the doctrine of part performance is based on which section? Section 53A, Section 54, Section 57B and none of the above. द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ भी ध्यान दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस रट लेना है. हाँ, पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, लेकिन सेक्शन वाला तो रटना ही पड़ेगा कि किस सेक्शन में है. तो इसका आंसर है सेक्शन 53A. मैं किसी दिन पार्ट परफॉर्मेंस पे अलग से वीडियो बना करके उसको एग्जांपल देकर के डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके और प्रोमिनेंट केस लॉज के लाइट में मैं आपको समझाऊंगा. बट एज ऑफ नाउ आप इसके सेक्शन को याद कर लीजिए कि सेक्शन 53A में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ part performance under under Transfer of Property Act 1882, right? Coming on to the next question for today, that the literal meaning of lis pendens is. lis pendens का मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग. फिर से मैं यही बोलूंगा कि lis pendens का जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है. तो इसमें ऑप्शंस आपके चार हैं. मैं चारों को बोल देता हूं पहले, फिर मैं आऊंगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे. पहला है अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ. दूसरा है प्रीवियस डिसीजन बार्स द सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ द सूट. तीसरा है एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. ये तो आपका ऐसे ही कट जाता है क्योंकि ये सीपीसी का कॉन्सेप्ट है. चौथा है नन ऑफ द अबव. Guys, the correct answer is the first one, a suit under consideration of any court of law. The very basic interpretation and the very literal interpretation of lis pendens is pending suit. lis pendens, pendens है pending, lis का मतलब suit, lis का मतलब suit, lex का मतलब law. तो यहां पर lis pendens का मतलब क्या हुआ? pending of suit. तो पेंडिंग ऑफ सूट का मतलब क्या है? पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ. यही तो पेंडिंग ऑफ सूट है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है. पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, पेंडिंग द सूट. ठीक है, ये लिस पेंडेंस का मीनिंग है, राइट. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. हमने आज आपको कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और मुस्लिम लॉ के बारे में बताने की कोशिश की है एंड होपफुली यू विल लाइक इट. और मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारा बस एक ही सोल इंटेंशन है, सोल एजेंडा है कि पूरे इंडिया में लॉ को इंटरेस्टिंग बनाना है. लॉ के ऊपर जो टैबू लगा है कि लॉ एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और नहीं समझ में आता है जल्दी, चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, रात में रट करके किसी भी तरह से एग्जाम में वोमिट कर देते हैं, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है. And for that purpose only I am here before you all. So in order to connect with you via through this YouTube medium, right, my aim, my single endeavor is to make law a very simple subject that even a layman can understand, that even those people who make gossip at the tea stall, चाय के दुकान पे जो गॉसिप करते हैं, उनको भी कानून समझ में आना चाहिए. इतना सिंपल बनाना है. तो आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए और हमारे मैनेजमेंट डेस्क पे आप कॉल कर सकते हैं, राइट. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी. स्टे ट्यून्ड ऑन इंडियाज बिगेस्ट लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म, लॉ लर्निंग सेंटर, ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ चाणक्य जुडिशियल अकेडमी एंड चाणक्य क्लैट क्लासेस. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.